हेलो 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 मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी बाकी बच्चे जुड़े नहीं हैं। जी सर। Today we are studying about the steroid containing drugs, which also help for the cardiac disorders. It also contains some alkaloids, some glycoside containing. Basically, it should be present in the steroid category of secondary metabolites. Now, it is a very simple drug. The name is digitalis. 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 The biological source of this drug is, it is also known as your digitalis leaves and also known as the fox glove leaves. The synonym of this plant is digitalis leaves and fox glove leaves. The biological source of this is, it is derived from the dried leaf of plant Digitalis purpurea Linn, belonging to family Scrophulaceae. ये बेसिकली किसमें होता है? ये dried leaves of plant known as the Digitalis purpurea and belonging to family Asteraceae को बिलोंग करता है। Got it? Now and basically it should be grow in the temperature about 60 degree Celsius. मतलब इसका जो ग्रोथ है वो बेसिकली अपने रीजन में नहीं है, जहां पे टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री रहेगा, एडवाइस और साउथ इंडिया है ना, इस सब ज्यादा होते हैं ये। आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स इट कंटेन नॉट मोर देन 5% मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर जो है 5% से कम होना चाहिए, तब जाके ये अच्छा इसका ग्रोथ होता है लीव्स का, एंड वी कैन get much amount of chemical constituent in the leaves of this Digitalis purpurea Linn. Got it? Now the geographical source of this is, it means that where this plant should be obtained. Basically it is found in the India, Europe, some British, USA. These are the main active sources of this plant where it should be cultivated and collected their chemical constituent and leaf part of this plant. Now, what is the cultivation parameters of this plant? Cultivation parameter means at which temperature, at which altitude, at which climate, soil this plant should be grow. So some of their cultivation parameters. The climate is first. It is the main important part of this plant. Then altitude, then temperature, type of soil, pH of soil. We can see that dry weather should be there. One 650 meter in altitude, about 60 to 80 degree Fahrenheit temperature should be there. Semi acid soil should be there for the growth, and pH is 5.7 to 7.2 pH. जो इसके आपके बेसिकली
कल्टीवेशन पैरामीटर्स होते हैं, इसमें जो क्लाइमेट होना चाहिए अबाउट फॉर दैट particular growth of this plant should be, the weather is dry weather should be there in which the plant should be grow better. The altitude is about above the sea level, 1650 meters should be the altitude. The temperature regarding for the growth of this plant is about 60 to 80 degree Fahrenheit. Now the type of soil, it is the most important part of this, at which the plant should be growth. For their growth the semi acid soil should be required. It means that जो soil होगी आपकी that contains some your acidic nature in there, in which the plant should be grow much more better. Got it? And the pH of soil, it is the important part. pH आपको सभी को पता होगा, log of hydrogen ion concentration should be there. तो इसका जो pH होना चाहिए that is the 5.7 to 7.2 pH. It means it should be your acidic in nature. 7.5 जो होता है that is the neutral pH होता है. Below 7.5 is the acidic nature and above 7.5 is the basic in nature. तो यहाँ पे क्या 5.7 to 7.2 जो होना चाहिए इसका basic nature होना चाहिए. Now the collection and cultivation. It means that by which method the plant should be cultivated and what is the process to collect the plant material. Got it? Now the collection and cultivation. Sown by seed about 2.5 kg per hectare. Required seeds are small. जो बेसिकली इसका कल्टीवेशन है इसको शो करते हैं बाय द सीड्स से. सीड्स के इसके सोइंग होती है इन हेक्टर. एक हेक्टर में अबाउट 2.5 kg जो सीड्स रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर कल्टीवेशन प्रोसेस. नाउ द सीड्स, अब क्या होता है इसके सीड्स होते हैं बहुत ज्यादा लाइटर इन वेट होते हैं. तो the seeds are mixed with the sand. Seeds क्या करते हैं mix with soil और sand से plus sand से mix करते हैं. After that इसको अपन show करते हैं ground में. That is the process of this. Normally इसको अपन grow करेंगे एक dumpy soil में. Got it? अब देख रहे हैं अपन यहाँ पे आफ्टर सोइंग जब आपके प्लांट्स जो हो गए शो हो गए हैं, दे कम्स रूट्स शुड बी कमिंग देयर, द लीव्स आर आउटगोइंग या ओवरलैपिंग शुड बी देयर. नाउ वी कैन पिक अप, इसको अपन पिक करके अपन से ग्राउंड में एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लगाएंगे. कुछ ऐसा आपका इसका रो रहता है जो इसका डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. एक अगर यहाँ प्लांट इस टाइप के अपन इसकी प्लांटेशन करते हैं. ये इसलिए कि अगर डिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा प्लांट का जो ग्रोथ रहेगा दैट शुड बी मच मोर बेटर और इसमें ज्यादा अच्छे अमाउंट में वी कैन ऑब्टेन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस प्लांट. सो दैट इज द कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ दिस. नाउ द कलेक्शन प्रोसेस. Collections means after cultivation the next step is the collection. जब प्लांट आपका बढ़ गया पूरा कंप्लीट हो गया तो at which time we can collect it, है ना. आप सबको पता है कभी भी किसी भी चीज का अपन अगर कलेक्शन करते हैं आफ्टर मैच्योरिंग, है ना. जब वो प्लांट पूरा मैच्योर हो जाता है at the time of maturity the plant contain much more amount of केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ट्रीट करने में काम आ रहा है. तो अपन उस टाइम में ही क्या करते हैं इसको कलेक्ट किया जाता है. तो जो इसका बेसिकली कलेक्शन टाइम होता है दैट शुड बी ऑफ सितंबर टू नवंबर. इसका बेस्ट
ये लीफ का करते हैं अपन, क्योंकि द मेन एक्टिव कल्चर शुड बी प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ दिस प्लांट। और एट द टाइम ऑफ योर कलेक्शन, जो आपका सिंपली आपकी दिस कलर्ड लीव्स होती है, इसको अपन नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये लीव्स सूख चुकी होती हैं और इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है या बिल्कुल नेचुरल होती है। तो वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ लीफ, वी कैन ओनली collect the healthy leaf at the month of September to November. After collecting the leaf, इसको ड्राइड करते हैं अपन at 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ड्राइड करेंगे और उसका ग्रीन कलर मेंटेन करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं हाउ कैन वी मेंटेन द ग्रीन कलर, जब किसी भी अपन लीफ को ड्राई कर देंगे तो उसको ग्रीन कलर आप कैसे मेंटेन करोगे? तो द फिनोमेना इज दैट कि ड्राइंग जो होती है आपकी 2 या 3 टाइप्स की होती है। इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स, जिस ड्रग्स में वोलेटाइल ऑयल रहता है, स्टेरॉइड्स रहता है, दैट शुड बी ड्राइड इन द शेड ड्राई। उसको अपन को धूप में ड्राई नहीं करना है। लीव्स को अपन ने कलेक्ट किया है मंथ ऑफ सितंबर नवंबर, उसके बाद उसको सिंपली आप लीफ को शेड में इनसाइड द रूम आप उसको बिछा देंगे, तो क्या होगा, वो ड्राइड हो जाएगी और उसका कलर जो है डिफरेंट ग्रीन मेंटेन रहेगा, कलर उसमें कोई भी मूव ऑन नहीं होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ शेड ड्राइंग। आफ्टर दैट मॉइस्चर कंटेंट, जब अपन शेड ड्राई करेंगे तो एट अ टाइम क्या करेंगे, इसका अपन वेट को ले लेते हैं, है ना। सपोज आपने 1 kg अपन ने लीफ ली है, तो आफ्टर ड्राइंग इट शुड बी लॉस अबाउट 2.5 mg या 2.5 ग्राम के आसपास इसका लॉस होगा। इट मींस दैट जो मॉइस्चर है आपके लीफ में वो जो है पूरा जा चुका है। अगर मॉइस्चर रहेगा लीफ में तो क्या प्रॉब्लम जाएगी, द लीव्स कंटेन फंगस, उसमें फंगस हो जाएंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएंगे, तो आपका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड रहेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट्स लगा के उसको लीफ को वे करेंगे प्रॉपर। अगर वो 7.5 mg के क्रॉस होगी, इट मींस दैट आपका लीफ से पूरा जो है इसका वाटर या मॉइस्चर कंटेंट शुड बी रिमूव आउट। आफ्टर दैट वी कैन पैक, इसको क्या करते हैं अपन, इसको पैक करते हैं अंडर प्रेशर in air tight कंटेनर। क्या करेंगे अपन, इसको सिंपली जब मॉइस्चर कंटेंट पूरा इसका निकल गया, उसको अपन लीव्स को लेंगे, वन लीफ को फोल्ड करेंगे, उसको एक एयर टाइट अंडर प्रेशर एक एयर टाइट कंटेनर पैक कर देंगे फॉर द रिमूव ऑफ योर डिजास्टर, फॉर द रिमूव ऑफ योर मॉइस्चर। दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्शन एंड cultivation of this plant. Now the macroscopical identification. Macro means morphological, इसको अपन मैक्रो बोलते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इसमें सीड्स रहती हैं, ये रहती हैं आपकी, जो कलर रहेगा बेसिकली इसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप। द कलर इज बेसिकली डार्क ग्रेइश ग्रीन रहेगा, ऑर्डर रहेगा स्लाइट ऑर्डर रहेगा, टेस्ट बिटर इन टेस्ट रहेगा, साइज अबाउट 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 सेंटीमीटर 4 to 20 सेंटीमीटर इन
breadth रहेगी, shape रहेगा ovate in shape। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है बेसिकली जो लीफ कलर रहेगा, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल। सपोज मेरे पास ये आपका ब्लैकबोर्ड है, अब इसका मेरे को मॉर्फोलॉजी इसमें है ना आउटर कैरेक्टर ऑफ दिस, यू कैन सी दैट जो इसका आपका सरफेस है अबाउट कितना सेंटीमीटर होगा, ये अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ रहेगा। जो ब्रेथ रहेगी दैट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। द कलर इज बेसिकली ब्लैकिश एंड व्हाइटिश इन कलर। टेस्ट जो रहेगा इसका कैसा रहेगा और इसका शेप साइज कैसा रहेगा। तो सेम जो है इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जो इस लीफ का जो कलर है दैट इज ऑफ येलोइश ग्रेइश इन कलर। द ऑर्डर इज स्लाइटली सलाइन इन नेचर बिकॉज़ इट शुड बी ग्रो इन द अल्कलाइन मीडिया। ये अल्कलाइन मीडिया में ग्रो होता है, तो इसका जो आपका बेसिकली कलर रहेगा वो कैसा रहेगा आपका सलाइन इन टेस्ट रहेगा। देन टेस्ट बेटर रहेगा, है ना, ये कड़वा स्वाद का इसका पत्ती रहता है। The shape रहेगा about 10 to 40 सेंटीमीटर in long and 4 to 20 सेंटीमीटर in breadth रहेगी आपकी। and the shape is ovate shape। ovate shape क्या होता है? oval like। जो कभी आप अगर टेनिस की लीफ देखेंगे आप, that is the it is the structure of this leaf। ovate shape रहता है, मतलब पूरा ovate रहेगा, इसका shape रहेगा बेसिकली। और मार्जिन रहेगी that contain the veins, veins रहेंगी इसकी, और greenish green in color रहेगी। so that is the morphological identification of this leaf। got it? now come to the microscopical identification। ये तो बात हुई आपकी आउटसाइड द लीफ। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इनसाइड द लीफ क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। आई थिंक यू हैव टू नोट इट। नाउ द माइक्रोस्कोपिकल identification। इसका डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। Glandular trichomes are there. That is the covering type trichomes. That is the upper
epidermis, that is plasmid cell is there, sorry, paracrine, not plasmid. Parenchyma should be there. Lower epidermis is the vascular bundle. Pericycle, and it is the colon cell should be there. आप देख पा रहे हैं the TS of this plant or the microscopical identify this plant shows a different layer and different cells should be present inside this. That is the upper epidermis and this is the lower epidermis. आपका जो सबसे upper layer होती है that is the upper epidermis and जो lower होती है that is the lower layer. इसके बीच में आपका दो cell present है that is the plasmid cell should be there and parenchymatous cell should be there. Above this upper epidermis the trichomes should be present. अब आपके दिमाग में आ रहा हो what is the mean by trichomes? Basically trichomes are of different types, but in this type of your digitalis purpurea limb the granular as well as the covering trichomes should be present. The basic role of trichomes are to protect the epidermis layers. जो epidermis layers रहती है, जो cells रहती हैं, उसको वे protect करता है. And secondly, for their movement, for their locomotion. इसको पहले ये क्या कर रहा है? इसको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी में कोई भी पैथोजन अटैक ना हो सेल्स में, डर्मिस एपिडर्मिस में, और दूसरा इसके कवर करता है कि इसको कोई भी हार्मफुल ना हो और लोकोमोशन क्या होगा. तो two type of trichomes should be present in this plant. One is the granular trichomes and second is the covering trichome. After that, in the center pith the vascular bundle should be present. आप देख पा रहे हैं जो मैंने ये ओवरलैपिंग एक किडनी शीट बनाई that is the vascular bundle. इसमें आपका वीवी में बेसिकली टू टाइप का अरेंजमेंट होता है that is the xylem and phloem, है ना. इसमें क्या है xylem and phloem का अरेंजमेंट होता है vascular bundle में. दिख रहा है that is the xylem और phloem जो हैं इसके पार्ट में ऐसे एक ओवरलैपिंग that is the phloem भरे रहते हैं. जो xylem का काम क्या होता है? To move the water from the lower to upper part of the body. It means that from the root nodules, from the rhizome, from the roots to the each and every part of body, such as your stem, such as your flowers, fruit, and so on and so on. And the role of your phloem is arrange the metabolism. Arrange करता है ऑक्सीजन लेवल को, मेटाबॉलिज्म को, और जो xylem का है वो ऑक्सीजन लेवल को सप्लाई करता है from upper to lower. Got it? After that, some pericyclic cells should be present in this that particular plant. इसमें कुछ pericyclic cells भी present रहती हैं. And lastly, the last layer is जो कि आपकी थोड़ा सा hexagon shape रहती है. इसमें क्या present रहता है आपका colon-chymatous cells should be present. इसमें colon-chymatous cells जो हैं. So this is all about your morphological identification of this your cell. Got it? Now the important part is chemical constituent. I think you all are drawing this plant. आपको टीएस हमने बना ही लिया होगा. Now we are study about the chemical constituent of this plant. Chemical constituents about 0.22
0.4% सेकेंडरी कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट, जिसका नाम है कार्डियोलाइट्स, CARDEOLITES, कार्डियोलाइट्स जिसको बोलते हैं, ये रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस परपूरिया ग्लाइकोसाइड A and B should be present। जो मेन एक्टिव कंपाउंड जिसका है, एक तो परपूरिया होता है बेसिकली, और आपका कार्डियोलाइट्स ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब जिसको अपन कहते हैं टॉक्सिन एंड डिगोटॉक्सिजिनिन, टू फॉर्म टॉक्सिन और डिगोटॉक्सिजिनिन, ये टू पार्ट में बेसिकली प्रेजेंट रहता है। Now जो परपूरिक ग्लाइकोसाइड्स है A और B, A से क्या मिलता है आपको डिगोऑक्सीजिन, और B से क्या मिलता है आपको डिगोऑक्सीजिन। इसका जो सिंपली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको। परपूरिया ग्लाइकोसाइड A एंड B दोनों का है, दोनों में क्या लेना है अपने को, फ्रेश लीफ, इसमें भी लिया फ्रेश लीफ आपने, इसमें भी लिया। सम एंजाइमेटिक हाइड्रोजन शुड बी ऑब्टेन्ड, हाइड्रोलाइसिस शुड बी डन। क्या मिल रहा है आपको, डिगोटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज। जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या होगा, यू कैन ऑब्टेन डिगोऑक्सीजिनेज। सेम इसमें भी है, फ्रेश लीफ को में अपन एंजाइमेटिक एक्शन करें, हाइड्रोलाइसिस करें, वी कैन गॉट द डिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज। Again we can hydrolyze this, we can obtain oxygen and 3 डिगोटॉक्सिस, है ना। ये इसका क्या आता है, बेसिकली आइसोलेशन प्रोसेस होता है। जैसे मैंने पहले कहा था, दो इसके मेन एक्टिव कंपाउंड है, एक सेकेंडरी कार्डिक ग्लाइकोसाइड शुड बी देयर, जिसको बोलते हैं कार्डियोलाइट्स बोला जाता है। सेकंड इज द परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स A and B should be present, जिससे अपने को दो इसके मेन एक्टिव कंपाउंड आइसोलेटेड है अबाउट 2.2-2.4% में, दैट इज द डिगोटॉक्सिन एंड डिगोटॉक्सिजिनेज। जब अब परपूरिया A और परपूरिया B को अपन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, दोनों में फ्रेश लीफ ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक एक्शन एज वेल एज इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वी कैन ऑब्टेन द डिगोटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज। दो चीज यहाँ पे मिल रही है आपको, क्या, एक डिगोटॉक्सिन और दूसरा ग्लूकोज मिल रही है। उसको अपन अगेन हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, डिगोऑक्सिन, दैट इज योर
at equation this should be obtained. Got it? After that सेम यहाँ पे भी हो रहा है, सिंपली फ्रेश स्लिप को लिया, उसमें एंजाइमेटिक एक्शन दिया, हाइड्रोलिसिस किया आपने, तो क्या मिल रहा है, जिटॉक्सिन और ग्लूकोज मिल रहा है। उसको अपने अगेन क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो जिटॉक्सिनेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसका केमिकल स्ट्रक्चर, बेटा प्लीज म्यूट, आमिर अंसारी म्यूट करो बेटा। पता नहीं चला चल फिर संकल लगा ना नो बढ़िया। अब मैं आपको इसका केमिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्या से केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली दोनों का। ये सर क्या है, बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर है। हम मिथाइल ग्रुप के लिए ना चलो बंदा फिर डिकॉक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली। कहां मिलल बाबर जी के नाउ द मीन इज यूजर्स। इसके केमिकल टेस्ट, जब किसी भी चीज में अपन क्या कर लेते हैं, देखते हैं तो उसका केमिकल टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या क्या केमिकल टेस्ट अपन इसमें लगा सकते हैं। किलर किलानी टेस्ट यूज करते हैं। देन आपका लीगल टेस्ट शुड बी यूज, देन बाल्जिक टेस्ट शुड बी यूज। ये जो तीन टेस्ट होते हैं, किलर, किलानी, लीगल और बाल्जिक। बेसिकली केमिकल टेस्ट क्यों करते हैं अपन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के जो भी आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसके फ्रेश लीव होता है, इसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन होता है, उस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को अपन को निकालना पड़ता है ना। तो उसमें क्या कैसे करेंगे इसको, तो क्लियर कराने में बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, 10 ml अल्कोहल लेंगे। हाँ क्लास में हूँ 19-20। हाँ सेकंड जो होता है आपका स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, लीगल टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट को डिसॉल्व करते हैं अपन पायोडीन के साथ। तो क्या देगा एक्सट्रैक्ट आपका, पिंक कलर शो करेगा, इट मींस दैट कि जो आपका केमिकल सही है। सेम आपका जो बाल्जिक टेस्ट होता है, इसमें सोडियम
पिक्रेट सॉल्यूशन लेंगे आप, ऐड करेंगे, इट शो येलो कलर, है ना। सिंपली एक्सट्रैक्ट को लेना है, एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद अपन इसमें आयोडीन डालेंगे तो ग्रीन कलर शो करता है, इट मींस दैट आपका जो टेस्ट है पास है। बायोलॉजी टेस्ट में भी सिंपली सोडियम पिक्रेट लेंगे, इट शोज द येलो कलर, इट मींस दैट योर टेस्ट शुड बी पास। नाउ द यूजेस ऑफ दिस प्लांट, बेसिकली ये CCF में ही होता है, दैट इज द congestive cardiac failure, अगला काम इसका है वेंट्रिकुलर रेट में काम आता है, टू मेंटेन सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है ना, आपको पता है कि बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, तो एक तो CCF में काम आएगा, कंजक्टिव कार्डियक फेलियर में यूज हो रहा है। सेकेंडली आपका ये वेंट्रिकुलर रेट जो होती है हार्ट की, उसके लिए काम आ रहा है। थर्ड इज और क्या, ये मेंटेन करता है सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। As we all know that जो आपके हार्ट से दो टाइप के प्रेशर, that is the systolic and diastolic, which control the your blood pressure level. Systolic is the downward and diastolic is the upward. About जो normal BP होती है, that is about 80 to 120 should be there. जो normal BP होती है, तो ये systolic pressure means जो 80 होगा उसको ये normally maintain करता है इसका cardiac size, because it contain the digoxin, है ना। That is the one kind of your secondary metabolites in the cardiac glycoside. Okay. Now some adaptation. Adaptation भी आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, सेकंड लास्ट में। adaptation मतलब क्या होता है कि apart for this, है ना, apart for this अगर इसमें कोई भी अपन उसकी अलग टाइप की ड्रग को ऐड कर रहे हैं जिसका फिजिकल अपीयरेंस या लिटिल बिट केमिकल कंस्टिट्यूएंट शुड बी देयर, या लिटिल बिट सबलिंगल बिल्कुल अलग ही होगा, है ना, सब्स्टिट्यूट फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिक्सिंग कर देंगे तो होता है। तो इसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ कॉस्टली ड्रग। कॉस्ट ड्रग होती है, उसका रेट डिक्रीज करने के लिए और उसका मार्केट बढ़ाने के लिए अपन उसमें एडल्ट्रेशन भी करते हैं। अडल्ट्रेंट एक इसकी अलग वैरायटी आती है, इसका वर्बा स्कोम टेक्सस, ये भी सेम फैमिली को बिलोंग करती है। इसकी लीव्स को अपन डेटालिस लीफ में अडल्ट्रेंट के फॉर्म में मिलाते हैं, बिकॉज क्या होता है ये लिटिल बिट सिमिलर रहती है, सिमिलर कलर शेप एंड size. That's why it should be widely and it should be mostly used as a adulterant in the Dioscorea, Retalis leaf. Now the leaves of Palmula vulgara, Palmula vulgara, vulgara, इसकी भी क्या करते हैं, लीव्स को मिलाते हैं क्योंकि इसकी जो बेसिकली माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल डिजिटलिस लीफ जैसी होती है ना। अगर इसको अपन करते भी हैं तो यहाँ इसका सेक्शन जो इसका टीएस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया था डिजिटलिस का, और जो आपका पैनिकुला वर्गेरा है इसका जो टीएस सेक्शन है कंटेन अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हिच इज कंटेन द योर गैंग्लियोनर ट्राइकोम्स एज वेल एज द covering trichome should be there, your parenchymatous should be there, the same piece should be there which contain the xylem and phloem vascular bundles as well as parenchymatous should be present. तो दोनों का जो है माइक्रोस्कोपी है about same है, so that's why in place of this digitalis leaves we can add some amount of Palmula vulgara leaf, है ना।
about mostly some chemical constituents should also be as like same, है ना, जो इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं वो इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन the quantity of chemicals constituent should not much more better, जो उसकी क्वांटिटी है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेसिकली जो रिस्पांसिबल है फॉर द कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर कंटेन इन द योर कार्डिक, उसके लिए जो है ज्यादा प्रॉपर नहीं है, लेकिन एज कंपेयर द रेट, जो रेट है डेटालिस का हाई है और पेनिकला वर्गिल्स का जो है रेट कम है, दैट्स व्हाई इसको अपन इसमें ऐड करते हैं दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। गॉट इट। एक और प्लांट होता है